अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणीम्। First of all, सबसे पहले सबसे पहले that's better. I will try, see how far I can reach. Yes. सबसे पहले मैं अपने परमाराधितम गुरुपाद पद्म को दंडवत प्रणाम करता हूँ। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिष्यमाद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज और उनके अहितु की कृपा एंड हार्टली ब्लेसिंग्स का प्रार्थना करता हूँ। मैं ट्राई करता हूँ हिंदी में बात करने का। मेरा हिंदी ब्रोकन है, जो निकलेगा समझ में नहीं आया तो मुझे करेक्ट कर देना। प्रभु जी आप इंग्लिश में बोल सकते हैं अगर आपको परेशानी हो। Okay, I'll try. Whatever you're comfortable. Don't worry. Yeah. Don't worry about language. Okay. So I'll try not to glorify myself too much. I have a tendency to do that. मैं try करता हूँ गुरुजी का महिमा के बारे में बात करने में, मेरा not my own glories. It's okay. Both are fine. Both are fine. For us. Both are fine. We read in Brihad Bhagavatamritam and many scriptures we see when we try to inspire. Gop Kumar tries to be inspired. Anybody tries to become inspired. Shukadev Goswami or Gopal Guru, whoever it is, they always tell a little bit about their own life history to the people listening so that they get some inspiration. Yes. Quran, we hear many stories from Quran, from past, but something that happened very nearby, very close, has a strong effect on our inspiration. Yes. So it's always helpful, and hopefully something beneficial can come from this for me as well. In 1992, my parents, when I was 10, 11 years old, we joined with the Brahmarishi mission, like my mother explained on Friday. And from there, we were learning Gita, Ramayana, yoga classes, Hindi, writing Devanagari. And from there, I also joined Hindu Swayam Sevak Sangh and started going there as well for 2-3 years. Then in 1995, some interesting things started happening. I wasn't aware that this was going to be the prelude to the arrival of Srila Gurudev. But in 1995, first of all, in the beginning, we had in Italy, the deities of Maria, the mother of Jesus, was crying blood a lot. And people were going, they could see it. There were rumors, maybe it's not true, but you could actually see, there's footage, you can see Maria was crying. And many people were giving many reasons. Something is about to happen in the world. Maria is crying so much. This was one thing that happened in 1995, beginning of the year. That year also, after having stayed in ISKCON temple for 3 years, my temple president, he went to India, he went to Mayapur, and there he spoke with Bhakti Purushottam Swami, who also I served a little bit when he came. He's in charge of the Mayapur Gurukul. Just like you, I was going to end up in Mayapur Gurukul. They had registered my name, placement was done, and this was done in 1995. And after the centennial in 96 of Srila Prabhupada, I was supposed to go to this Gurukul. Then in the summer of 95, we had our very first Rath Yatra in The Hague in Holland with ISKCON. And the night before the Rath Yatra, we all went to decorate the chariot, cleaning, making garlands, preparing everything nicely. लेकिन उसी रात को भी शिला गौर गोविंद गोस्वामी महाराज का प्रवचन होने वाला था हॉल में, उस रथ के बगल में ही. And I had no idea, क्योंकि बैंड चल रहा था. We had no idea he was coming. तो मैं तो रथ पर अपना सेवा कर रहा था, और फिर एक लंबा सा चौड़ा सा आदमी, आश्रम महाराज, अब उस समय गोविंद भक्त, वो दौड़ कर अंदर आया, कीर्तन अपने आप कीर्तन गाने लगा on the playground of the school towards the big hall. और उसके पीछे पीछे एक बड़ा गाड़ी आया और बहुत से भक्त लोग सब कीर्तन कर रहे हैं. फिर दरवाजा खुला और फूलों का
shower of flowers was made, and out of this shower of flower, out of the car came Srila Gaur Govinda Maharaj, जिसको मैं कभी पहले देखा नहीं था. And when he came out of the car, मैंने देखा सब लोग उसके पैर पर गिर रहे. They were putting their heads on his head and rubbing, taking the dust from his feet. और हमने तो सीखा था पहले ISKCON में कि यदि कोई गुरु आए तो उसको सामने से प्रणाम मत करना, पीछे से, नहीं तो उसको अभिमान होगा और वो गिर जाएगा तो अपने पोजीशन से. तो मैं पहली बार जिंदगी में देखा कोई किसी गुरु को सामने से प्रणाम कर रहे हैं और वो भी बिल्कुल अनटच्ड ऐसे ही चल रहा है, उसको कुछ नहीं होने वाला है. So there was a whole shower of flowers. He went inside और गुरु पूजा हुआ था उसके. तो मैं पहली बार भी देखा सब लोग अपना सिर लेकर उसके पैर में रब कर रहे थे, कभी पहले नहीं देखा. Then he sang जय राधा माधव और उसका प्रवचन शुरू होते समय ही हमारा टेम्पो प्रेसिडेंट अंदर आया, हम सबको निकाला, बोला नहीं आपको वापस जाना, सेवा करना है, कल रथ यात्रा है, रथ को प्रिपेयर. तो महाराज जी का प्रवचन मैंने सुना नहीं, बस उसका जय राधा माधव सुना. राधा माधव खत्म होने पर टेम्पो प्रेसिडेंट निकाला कि चलो वापस जाना है, सेवा करो. तो उसका प्रवचन नहीं सुना. लेकिन उसी रात में I found out, I got a flyer from the devotees, and I went back to home and I told my father and mother, we have to go see this Gaur Govinda Maharaj. I don't know who he is and I don't know what they thought, but for some reason they went, okay, maybe my enthusiasm or craziness, bola theek hai chalte hain. And so the next day or the day after we went and we had darshan of Srila Gaur Govinda Maharaj. And it was this darshan of Srila Gaur Govinda Maharaj actually that पहली बार एक ऐसा महान भक्त, महाभागवत भक्त का दर्शन पाए, which became very significant later in life. When we met Gurudev, that same feeling came. But something very special, Srila Gaur Govinda, this is still 1995, Maria crying, me going to Mayapur Gurukul, Srila Gaur Govinda Maharaj coming, and Srila Gaur Govinda Maharaj, he predicted, उसने prediction किया, Kanupriya Goswami has said that 1996 mein, well, he didn't say 1996, Gaur Govinda Maharaj made the calculation. Kanupriya Goswami said, after so many years after Mahaprabhu's advent, because 1996 is a significant year, also Prabhupada's centennial, but also, I don't know how many years after Mahaprabhu's appearance. और उस कानुप्रिय गोस्वामी ने कहा कि 1996 में प्रेम युग का शुरुआत होगा. The Prema Yuga will start in 1996. And Srila Gaur Govinda Maharaj made the calculation and he said, oh, the year that he's talking about is 1996. So many devotees thought this is the year Srila Gaur Govinda Maharaj will come out and like Acharya self-effulgent, he will show that he is Acharya. And so there was this talk in 1996 mein kuch hone wala hai. The Acharya will reveal himself. Who is it going to be? And ऐसे भी देखा हम बहुत दूसरे सारे आचार्य लोग भी confirm किया कि कौन है ये personality. For example, we heard many times the story of one Italian devotee जो हरि नाम लिया था श्रीला भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज से और दीक्षा श्रीला गुरुदेव से. तो वो सेवा कुंज में गए और श्रीला भक्ति वैभव पुरी महाराज से क्षमा मांगा कि मैंने तो दीक्षा कहीं और से लिया. और जब महाराज जी से कहा कि उसने तो दीक्षा श्रीला गुरुदेव से लिया, तो श्रीला पुरी महाराज जी ने कहा कि देखो मैं तो इधर सेवा कुंज में हूँ, मैं रोज रासलीला का दर्शन करता हूँ, लेकिन मैं कुछ बोलता नहीं. ऐसा नहीं कि वो नहीं जानता है, वो बोलता नहीं. और फिर उसने कहा था कि श्रीमती राधा रानी के विशेष कृपा है श्रीला नारायण महाराज पे कि वो खुलकर सब बोल सकता है, तो इसलिए अच्छा किया आपने. तो ये भी एक श्रीला गौर गोविंद महाराज पहले बोला कि 1996 में प्रेम युग शुरू होने वाला है, और यहाँ श्रीला भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज ने साफ खुलम खुला भी बोल रहा है कि ये इस प्रेम के बारे में, राधा रानी के प्रेम के बारे बोलने के लिए इसको विशेष कृपा है, परमिशन मिला है श्रीमती राधा रानी से. और एक बार मैं भी इंग्लैंड आया था श्रीला राधा गोविंद महाराज से मिलने के लिए. My grammar is crap in Hindi, but came to meet Radha Govinda Maharaj. Or we spoke with him a little bit, and he was very friendly. We told him that we are disciples of Srila Gurudev. I'm going back in front on the timeline, but just to make this point on how important this 1996 year is. Srila Radha Govinda Maharaj, he gave a class on Bhagavad Gita, and at the end of the class, somebody asked Radha Govinda Maharaj, what is the difference between Vaidhi Bhakti
एंड रागानुगा भक्ति। फिर श्रील राधा गोविंद महाराज ने कहा वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति के में कोई अंतर नहीं है, इट्स द सेम थिंग। फिर मैंने सोचा अरे बाबा कहाँ आ गया मैं, व्हाट इज ही सेइंग, हाउ कैन यू से वैदिक भक्ति एंड रागानुगा भक्ति इज द सेम थिंग। फिर महाराज ने कहा and I was in at this time Maharaj was speaking in Hindi and I was translating into English to four disciples of Gurudev. We were there and he knew that we were there and he was looking at us also when he was speaking this. फिर उसने कहा कि देखो रागानुगा भक्ति केवल वो व्यक्ति दे सकता है जो रागात्मिक है या कनेक्टेड है रागात्मिक से, मतलब जो जिसके पास माता यशोदा का प्रेम है, सखाओं का प्रेम है या गोपियों का प्रेम है, जिसके पास ये प्रेम है वो आपको रागानुगा भक्ति दे सकते हैं। फिर उसने कहा किसी का अपराध नहीं करना, लेकिन महाराज जी ये कहा था कि इस्कॉन में कोई नहीं है जिसके पास ये प्रेम है, तो इसलिए तुम्हारे लिए वैधि और रागानुगा भक्ति एक ही है। And then I was like, oh, and he was looking at us and then this is for me, वो confirmation दे रहा था कि हमारे गुरुदेव के पास ये, आंखों से बोल रहा था और मुख से कुछ और बोल रहा था, बिकॉज यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कौन है ऑडियंस में, कौन बैठा है। तो इनडायरेक्टली हमारे साथ ऐसे बात किया महाराज ने और बाद में दर्शन में उसके पास में दर्शन के लिए गए और उसने भी ये कंफर्म किया, लेकिन सबके सामने तो बोल नहीं सकते। तो ये श्रील राधा गोविंद महाराज ने, श्रील भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज और श्रील गौर गोविंद महाराज सब गुरु जी के बारे में ऐसे बहुत अच्छी तरह से बोले। तो फिर 1995 के अंत में कार्तिक में लास्ट चमत्कार ऑफ 1995, आपको सब शायद याद होंगे कि कैलाश में एक पुजारी था और पता नहीं कौन सा मंदिर में था और उसको रात में सपने में शिव जी आया और कहा मुझे प्यास लग रहा है, हमें दूध पिलाओ और सारी दुनिया में सबको कह देना कि हमको दूध पिलाना। तो इस पुजारी ने शिव जी को रात में दूध पिलाया, गणेश जी को भी, और फिर सारे जो मंदिर है दुनिया भर में सबको फोन लगाया। उस समय तो इंटरनेट नहीं था, अभी शुरू होने वाला था इंटरनेट, अभी उस समय नहीं था। तो हमारे हॉलैंड में भी सब हिंदू मंदिर ने पुजारी लोग गए अंदर और शिव जी को दूध पिलाने लगे और शिव जी पीने भी लगा। इस न्यूज़पेपर में हेडलाइन भी आया था, हिंदूज आर वेस्टिंग मिल्क, बिकॉज सारे हिंदू लोग सब सुपरमार्केट में सारे दूध खरीद कर सब शिव जी को पिला रहे, गणेश जी को पिला रहे। और मैं भी गया था, स्पून पर रखा दूध और शिव जी के गणेश जी जस्ट बाय हिज टस्क और एंड मिल्क वाज डिसअपीयरिंग। और साइंटिस्ट लोग कहने लगे हाँ दिस इज सम काइंड ऑफ स्पेशल मेटल, ये है वो है। फिर लोग आने लगा मेरा तो पिक्चर है गणेश जी का, वो भी पी रहा है। तो फिर साइंटिस्ट कह नहीं पाए। सो दिस वाज Kartik 1995, right before 96 was starting. Shivji and Ganesh drank milk. Maria cried in the beginning, and in the end of the year, Shivji and Ganesh drank milk all over the world. और महाविष्णु गोस्वामी गुजरात का, वो आया था हॉलैंड और उसने कहा इसका मतलब ये है, उसका इंटरप्रिटेशन ये था कि 1995 में गणेश जी शिव जी दूध पिया, इसका ये प्रमाण ये है कि आर्य समाज का नाश हो गया, they have no leg to stand on anymore, कि शिव जी गणेश जी दूध तो पी लिया हमारे सामने। And that is one thing। लेकिन बाद में हमको भी ये पता लगा कि जैसे हम परिक्रमा जाते हैं तो पहले शिव जी से आज्ञा लेना पड़ता है। गोवर्धन परिक्रमा कहीं भी क्या करे पहले शिव जी से आज्ञा लेना पड़ता है, ही इज आवर द्वारपाल। तो 1996 में ये प्रेम युग जो शुरू होने वाला था, ठीक उससे पहले ही 1995 में शिव जी पूरा दुनिया में द्वारपाल बनकर सबको अनाउंस कर रहा है कि देखो 1996 में ये प्रेम युग शुरू होने वाला है, कुछ होने वाला है, कोई आने वाला है। इसलिए मरिया, शिव जी, गणेश जी सब इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, लाइक शंख बजा रहे कि कुछ होने वाला है 1996 में। और फिर 1996 में आप सबको तो पता है 1996 5th of May गुरुजी पहली बार विदेश में आया। 5th of May 1996 1996 5th of May उसने हॉलैंड में सबसे पहले आया। और जिस दिन गुरुजी लैंड हुआ था in 1996, उस दिन हॉलैंड में लिबरेशन डे था, celebration of the end of the Second World War, freedom from Germans on Liberation Day। और ये भी अक्षय तृतीया था। उस दिन पर गुरुजी ने लैंड किया हॉलैंड में 1996 में।
और तब से तो सबको पता चलने लगा कि ये जो प्रेम युग जो जिसके बारे में श्रील गोविंद महाराज ने कहा, और जो सब कुछ जो हो रहा था 1995 में, ये सब कॉन्फर्मेशन बस था कि गुरुजी का अराइवल आने वाला है, गुरुजी आने वाला है। तो जब 96 में गुरुदेव आया, जैसे मेरा पिताजी ने कहा था फ्राइडे को, हम तो इस्कॉन मंदिर में थे, पिताजी तो नेक्टर ऑफ गोविंद लीला गोइंग बियॉन्ड वैकुंठ पढ़ रहा था, क्योंकि हमारे ब्रजनाथ प्रभु जी इस्कॉन का टेम्पल प्रेसिडेंट था, तो उसका रेपुटेशन अच्छा है। तो वो सारे इस्कॉन मंदिर में जाकर बुक शेल्फ में गुरुजी का नेक्टर ऑफ गोविंद लीला और गोविंद गोइंग बियॉन्ड वैकुंठ डाल रहा था, और कोई उसको कह नहीं रहा था। अभी जीबीसी का रेजोल्यूशन निकला नहीं था, तो आराम से गुरुजी का पुस्तक सब इस्कॉन मंदिर में डाल रहा था। हमारे इस्कॉन मंदिर में भी ये था, तो पिताजी पढ़ रहा था, मुझे तो कुछ पता नहीं था कि वो पढ़ रहा था। और एक दिन संडे प्रोग्राम के बाद में 96 में सारे गेस्ट चले गए, और हम जो मंदिर में रहने वाले, मतलब चलाने वाला, सारी फैमिली, समूह के बच्चे सब साथ में बैठे थे। फिर एक आदमी जो घर का मालिक जो किराए पर लिया था, वो मेरे दोस्त का पिताजी, वो आया अंदर, देखा मेल बॉक्स में, देखो ये मुझे 2 पेपर्स मिला है, उसमें इनविटेशन है, शिला नारायण महाराज इज कमिंग टू हॉलैंड। मेल बॉक्स में ऐसे आ गया, और उसमें लिखा पूरा एक्सप्लेनेशन, कैसे वो शिला स्वामी महाराज जी के साथ क्या किया, पहला मृदंग करताल भेजा, कोर्ट केस किया, संबंध कैसा है, संन्यास इनिशिएशन गुरुजी अपने हाथों से किया, डंडा बना, ये सब उसमें लिखा है। और फिर फाइनल समाधि भी गुरुजी अपने हाथों से किया, सब कुछ इसमें लिखा है। और फिर दूसरी साइड में 2 हफ्ते का, शायद 1.5 हफ्ते का प्रोग्राम लिखा है भक्तों के घर में। और फिर एक सैटरडे जो आने वाला था, एक हिंदू मंदिर, सेवाधाम मंदिर में लिखा कि गुरुजी उधर आएगा। तो फिर मैं और पिताजी, हम सोचे कि ठीक है, हम जाएंगे। मैं तो निर्णय किया मैं जाऊंगा। वो नेक्टर ऑफ गोविंद लीला का बैक में गुरुजी का पिक्चर है, और वो पेड़ के नीचे बैठा है। और सबसे पहले मैं ये पिक्चर देखा, फिर मैं सोचा इसका कपड़े तो आयरन नहीं है, और पैर पर धूल है सब, और नीचे आसन पर नहीं बैठा है, तो ये अट्रैक्टिव था। पूरा शरीर उसका कवर था धूल में। तो मैं सोचा ये बहुत अच्छा है, मैं इसको देखना चाहता हूँ। और पता नहीं दिल में क्या आया कि मैंने माला भी बनाया। मैं कभी किसी स्ट्रेंजर को, जिसको नहीं जानता, उसके लिए माला थोड़ी बनाऊंगा, लेकिन गुरुजी के लिए बनाया माला, मेरे लिए और पिताजी के लिए भी देने के लिए। फिर जब सेवाधाम मंदिर आए, गुरुजी को, जब गुरुजी गाड़ी से निकला, गोपीनाथ प्रभु का फैंसी गाड़ी से निकला, उसका क्राइसलर था उस समय, वो जब गुरुजी निकला तो क्राइसलर मिनी वैन, बहुत अच्छा। तो गुरुजी को जब गार्डन देने वाला था मैं, उस समय ही मुझे पक्का फिक्स हो गया, यही मेरा गुरु है अंदर से। और मैंने सोचा, क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे कि मत जाओ, वो ये है, वो है, वो है। फिर मैं सोचा, चाहे वो सहजिया हो, मायावादी हो, साईं बाबा के साथ हो, कुछ भी हो, ये तो मेरा गुरुजी है, मैं उसी के साथ ही रहूंगा। फिर गुरुजी, और मैं भी गया था मेरा प्रभुपाद टी शर्ट पहनकर पहले, कि मैंने सोचा देखो मैं इस्कॉन से आ रहा हूँ, मैं उसको दिखाऊंगा कि मैं इस्कॉन का हूँ, प्रभुपाद के साथ ही रहूंगा, कहीं जाने वाला नहीं हूँ। क्योंकि टेम्पो प्रेसिडेंट ने कहा था कि आप लोग जा सकते हैं, लेकिन किसी को बताना नहीं। और सभी ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। फिर उधर मंदिर में आया तो सब इस्कॉन का, सारे जो मेरे दोस्त थे, सब उधर ही थे। सब जिसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, सभी उधर थे, लेकिन सब टिके नहीं, लेकिन सब गए उस दिन। फिर उसी दिन गुरुजी ने एक बहुत अच्छा प्रवचन दिया प्रहलाद महाराज नृसिंहदेव के चरित्र पर, और सबको मुग्ध कर दिया। मतलब हम तो, हमारे तो फिक्स हो गया था ये मेरे गुरुजी है। फिर अब 1996 में ये हुआ, और लास्ट ईयर जब ऑडियो सेवा टीम में ज्वाइन किया था, तो ऑडियो सेवा टीम में तो 10,000 से ज्यादा क्लासेस है, और वो सब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इक्वली सब पार्टिसिपेंट्स में। तो पता नहीं, एक दिन मैं सोच रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, गुरुजी सुन रहा है मेरा प्रार्थना कि नहीं, क्या हो रहा है, इतना सालों से क्या होने वाला है मेरा। तो थोड़ा सा निराश हुआ था मैं। और उसी दिन जब मैं थोड़ा सा निराश था, मेरे ईमेल में तो रोज उस समय ऑडियो सेवा टीम का तो 5-6 क्लासेस मिलता था, उसको चेक करने के लिए कि कहाँ प्रवचन दिया, कौन बोल रहा था, कौन सा कीर्तन, ये सब मैं कर रहा था उस समय। तो ये जो सबसे पहला क्लास जो मैं गुरुजी से सुना था 1996 में, वो हमारा इनबॉक्स में आया। फिर मैं उसको सुना, फिर मैं गुरुजी का पिक्चर को देख रहा था, तो मुझे समझ गया कि हाँ, गुरुजी है। ऐसा नहीं कि वो चला गया, नहीं सुन रहा है,
पूरा, क्योंकि जब मैं इस प्रवचन को सुना तो पूरा मुझे उधर फिर वापस ले आया 1996 में। और फिर मैं लवंगा मंजरी को भी ईमेल किया कि देखो ये जो प्रवचन है ये सबसे पहला प्रवचन है जो मैंने गुरुजी से सुना। तो उसने भी बोला कि देखो ये कैसे हो सकता है, हजारों हजारों क्लास है और इतना बहुत से सेवक है, सबके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि ये प्रवचन तुम्हारे पास आ गया, ये गुरुजी का ही कृपा है। तो मैंने सोचा हाँ हाँ ये ठीक है। अच्छा, फिर गुरुजी आया 96 में और ऑडियो सेवा टीम मुझे फिर वापस ले आया उधर। गुरुजी जब आया हॉलैंड में, सबसे पहले मुझे याद भी है दामोदर प्रभु के घर में जब मेरे पिताजी गुरुजी के साथ हिंदी में बात करने लगा, तो सबसे पहले गुरुजी ये कहा कि हाँ आप हिंदी बोल सकते हो, इधर हिंदी बोलने वाले भी है। फिर गुरुजी ने बोला मैं तो अंग्रेजी बोलते बोलते थक गया एंड ही वाज सो हैप्पी कि हिंदी में बोल पाए। तो इसलिए हम भी हिंदू मंदिर में प्रोग्राम उसके लिए रखते थे, क्योंकि सब विदेशी लोग तो नॉर्मल हॉल में रखना चाहते थे और वो भी करते थे हम, लेकिन कभी कभी 1 या 2 दिन हिंदी प्रवचन रखना गुरुजी को अच्छा लगता था कि कम से कम वो फ्रीली हिंदी में बोल सकता था। तो वो ये शब्द उसका अभी तक याद रहता कि मैं थक गया, बोलते बोलते थक गया मैं, कम से कम कोई हिंदी बोलने वाला मुझे मिला। और गुरुजी का हिंदी स्पेशल था बिहारियों लोगों के लिए जो हॉलैंड में रहते हैं। अब थोड़ा सा जल्दी से सूरीनाम का छोटा सा हिस्ट्री बता देता हूँ, नहीं तो शायद समझ भी नहीं आएगा। इन द 1800s जब इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी था, सूरीनाम भी ब्रिटिश कॉलोनी था, और ब्रिटिश लोग ने बिहार में और कलकत्ते में गए और सबसे बोलने लगा कि सूरीनाम श्री राम का देश है, उधर सोने के थाली में खाने मिलेगा, बस इधर साइन करो। और ज्यादातर लोग तो पढ़ने जानते ही नहीं, तो उसको पता ही नहीं क्या साइन किया, तो उसको कॉन्ट्रैक्टर का साइन कर लिया और उसको लाला रुख दूसरी बोट से लेकर सूरीनाम भेजा। और सूरीनाम में आया तो देखा तो काम करना पड़ता है लैंड पर, कल्टीवेशन करने लगा। और जब उसको वापस तो जा नहीं सकते इंडिया, इतना दूर से आया, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, तो उधर ही सब थे सूरीनाम में। लेकिन ज्यादातर जो लोग सूरीनाम में आए वो बिहार से आए और अपने साथ तुलसीदास रामायण और हनुमान चालीसा ले आया। कुछ लोग गीता भी पढ़े, लेकिन ज्यादातर तुलसीदास रामायण हनुमान चालीसा, ये दोनों बस मोस्ट फेमस। और गुरुजी जब आए उसी के बारे में ही बात कर रहा था, तुलसीदास रामायण से ही बोलता था, तो इसलिए डायरेक्टली अट्रैक्ट हो गए ज्यादातर लोग। और मेरा आजी, और जिसे हिंदी दादी, मेरे पिताजी का मम्मी, वो तो बिल्कुल बिहारी जैसे बात करती थी गुरुजी के साथ, जो हमारे सूरीनाम में जैसे बात करते हैं वैसी शुद्ध हिंदी नहीं। और गुरुजी ने बोलने लगा कि हाँ मेरे गांव में तो ऐसे ही बोलते हैं, तो गुरुजी भी ऐसे बोलने लगा। हमको तो शुद्ध हिंदी नहीं आता है, कभी कभी गुरुजी प्रवचन में बोल देता है तरकारी इंस्टेड ऑफ सब्जी, और हम बिहारी लोग तरकारी, हम भी तरकारी कहते हैं। और चावल के बगल में वो गुरुजी बोलता है भाट, और बिहार में हम भी कहते हैं भाट। तो जब गुरुजी बोलता था तो जो हम शब्द यूज करते सूरीनाम में, गुरुजी भी ऐसे ही बोलते थे, तो सब लोग मुग्ध हो जाते क्योंकि वो सूरीनामी जैसे बोलता था गुरुजी हिंदी। और ये तुलसीदास रामायण के बारे में भी थोड़ा सा ड्रामा हो गया था, क्योंकि कुछ लोग इस्कॉन से कह रहे थे कि ये तुलसीदास जो रामायण है, तुलसीदास जी मायावादी है और हमको इसको नहीं पढ़ना चाहिए। और एक सन्यासी, उसका नाम इस कारण नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भूल गया उसका नाम, उसने लिखा था एक लेटर गुरुजी को कि देखो तुलसीदास रामायण मत पढ़ना, इसमें ये है वो है वो है वो है वो है, पूरा लिस्ट गुरुजी को दिया क्यों तुलसीदास रामायण को मत पढ़ना चाहिए। और शिला स्वामी जी महाराज जी 1 या 2 बार किसी को कहा था भी कि तुम इसको मत पढ़ो, तो उसको कोड लगाकर गुरुजी को भेज दिया। 1996 में ये लेटर मिला। तो गुरुजी का जवाब आया, उसमें गुरुजी सबसे पहले तो कहा मैं तो 10-20 बार तुलसीदास रामायण पढ़ा, आपने कितने बार उसको पढ़ा ये सब बोलने के पहले। फिर गुरुजी पूरा लिस्ट दिया कि तुलसीदास रामायण, तुलसीदास भक्त है और मायावादी बिल्कुल नहीं, पूरा लिस्ट उसको दिया। फिर शिला भक्तिवेदांत स्वामी महाराज का तो 20-30 कोट्स भी उसमें लगा दिया, शायद श्यामारायण जी भी उसको दिया, पता नहीं कैसे, कहा जहां पर शिला स्वामी महाराज जी भी कोट कर रहे। तो ये हमारा पहला इंप्रेशन था गुरुजी, जैसे शेर की तरह प्रीचिंग कर रहा था। मैं तो 20 बार पढ़ा, आपने कितने बार पढ़ा? वो किसके, हाँ कोई किसी से ऐसे थोड़ी बोलता है, लेकिन गुरुजी बोल रहा था ऐसे। एक बार तो मैं मेरे पिताजी के साथ एक इस्कॉन सन्यासी के प्रवचन में गए गुरुजी से मिलने के बाद, और वो तो प्रवचन में कहने लगा कि गुरुजी
हमारे गुरुजी तो प्रभुपाद जी का मदद नहीं किया, प्रभुपाद अकेला आया, ये किया वो किया। मेरा पिताजी तो खड़ा हो गया सभा के बीच में और उसको उसके सामने चिल्लाने लगा। मैं तो छोटा बच्चा था, क्या हो रहा है? और पिताजी मेरे हाथ लेकर हम चले गए। एक इंडियन सन्यासी था। फिर हम जब गुरुजी आए हॉलैंड, तो पिताजी ने गुरुजी का कहा कि देखो ये एक सन्यासी था, आपके बारे में ये कह रहा था, वो कह रहा था। और गुरुजी ने कहा उसको बोलने दो, सबको बोलने दो। मेरे सामने जब आते हैं ना, तो सब हमको फुल दंडवत प्रणाम करते हैं, सब डरते हैं, लेकिन मेरी पीठ के सामने बोल रहे तो बोलने दो। तो फिर मेरा पिताजी भी शांत हो गया था। और उसी समय एक सन्यासी आया था, गुरुजी को फुल दंडवत प्रणाम भी किया था। दूसरा मत का था, लेकिन फिर भी हमको दिखा रहे थे कि देखो गुरुजी कैसा है। एक बार गुरुजी भी अपना रूम में बैठा था ब्रजनाथ प्रभु के घर में 96 में, और एक भक्त, उस समय तो गुरुजी का दरवाजा खुला, कोई भी अंदर जा सकता था पहले ईयर में, और भी बाहर आकर घूमता था, हमको देख रहा था कैसे प्रसाद पा रहे हैं, खुलम खुला। 2004 में ये बदला, क्योंकि तब 2004 से पहले हमारे सब एक एक देश का एक एक फेस्टिवल, हॉलैंड में, जर्मनी, फ्रांस में, स्पेन में, इटली, सबका अलग। 2004 में माधव महाराज जी ने भी कहा कि देखो गुरुजी आपका कॉन्टिनेंट में आएगा और आप सबको उधर आए। तब से बड़ा फेस्टिवल शुरू होने लगा, तब से घाट द्वार सब कुछ होने लगा 2004 से, उससे पहले नहीं। तो एक भक्त ने गुरुजी के घर में रूम के अंदर गया ऐसे ही, और गुरुजी उसको बोला तुमको पता है मैं अपना एक हाथ से, एक उंगली से ये पूरा जो यूनिवर्स है उसको उठा सकता हूँ, बदल सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। और वो भी दौड़कर फिर बाहर आ गया, हम सबको देखो देखो गुरुजी हमको क्या कहा, हमको क्या कहा। और वो तो पूरा मुग्ध हो गया था गुरुजी की इस बात सुनकर। तो जिसको क्या सुनाना है, जिसको कैसे इम्प्रेस करना, गुरुजी को पता है, क्योंकि उसको यही सुनना था शायद, और तब से गुरुजी के साथ वो रहने लगा। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स गुरुजी हमको भी सिखाने लगा, जब 1996 में आया, प्रवचन में दहेग में गुरुजी ने सबसे ज्यादा ये कहने लगा हमसे कि हम तो मंदिर बनाने के लिए नहीं आया। फॉर सम रीजन ये बात मेरे अंदर रह गया, क्योंकि बहुत ज्यादा बार गुरुजी ने इस बात कहा कि मैं तो ब्रिक्स एंड सीमेंट का मंदिर बनाने के लिए नहीं आया, मैं आपके हृदय के अंदर बनाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए मैं आया। और क्योंकि वो मंदिर कभी टूटेगा नहीं, हमेशा के लिए रहेगा, उसी के लिए मैं आया। और 2010 में लास्ट इटली दर्शन डच डिवोटीज का भी कुछ संघ का थोड़ा सा भेद हो गया था, ये ग्रुप हो गया, वो ग्रुप हो गया। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, जितना ग्रुप बनाना है बनाओ, लेकिन सब अपने अंदर जो मंदिर है, जो हृदय मंदिर, उसको बनाना चाहिए। तो शुरुआत से और लास्ट तक गुरुजी कभी इसके बारे में कोई फिक्र नहीं किया कि मंदिर बन रहा है नहीं है। मतलब मंदिर बनाना चाहिए इस ये तो नहीं, लेकिन सबसे ज्यादातर फोकस उस पर दिया कि मंदिर, हृदय मंदिर, उसको बनाने के लिए चेष्टा करना। और गुरुजी भी आराम से बहुत स्वीटली सॉफ्टली देने लगा इंस्ट्रक्शन। 96 में एक नया इंस्ट्रक्शन हमको मिला कि देखो आप लोग तो जय जय गौरा चांदेर रात को शाम के आरती में गाते हो, और फिर उसके बाद आधा घंटे आप लोग कूदते नाचते हैं पागल की तरह, लेकिन उसमें 2 मिनट और ये जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलन मिला देना गौर आरती के बाद में, इसमें कोई प्रॉब्लम होगा आपके लिए? गुरुजी ने बोलने लगा हमसे, इस्कॉन मंदिर में प्रॉब्लम होगा तो उधर मत कर, लेकिन अपने घर में अपने अपने आप करना पड़ेगा ये। तो गुरुजी समझाने लगा धीरे धीरे कि ये कीर्तन करो, वो कीर्तन करो। और जब से गुरुजी आया तब से जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलन का कीर्तन हम करें, उससे पहले हम इसको कभी देखा नहीं, कभी गाया नहीं। और ये भी मंगल आरती हम केवल संसार दावा गाते थे, फिर गुरुजी मंगल श्री गुरु विभाव विशेष ले आया, पहले तो हम केवल संसार दावा गाते और कुछ नहीं। तो ऐसे धीरे धीरे गुरुजी ने सिखाने लगे हमको कि 1996 में ये इतना अच्छा 5 बज गया, अब मतलब आपका 9:30 कहना पर अजय प्रभु जब बंद करना मैं बंद करूंगा, बस साइन दे देना। तो 1996 में इन वन वे ये कृपा था गुरुजी का कि उसने कृष्णदास को नहीं लाया। कृष्णदास प्रभु 97 से आया, श्रीपाद बन महाराज जी और कृष्णदास प्रभु सेकंड टूर में आया, पहले में नहीं। तो इसी कारण गुरुजी को खुद ही हमको कीर्तन सिखाना पड़ा। इसी कारण गुरुजी खुद गाता था और हमको दिखाता था कैसे कीर्तन करना है। हमारे रिकॉर्डिंग्स है तो सब 96 का है और इसमें गुरुजी हमको सिखा रहे कैसे कीर्तन करना है। यदि कृष्ण दास प्रभु आ जाता 96 में तो ये रिकॉर्डिंग्स हमारे पास नहीं रहता कि गुरुजी कैसे विदेश में आकर हम गाते गौरंग बोलिते यशोतम कुछ नहीं आता हमको, जैसे गुरुदेव चाहता था।
तो वो खुद गाता था हमको। और जब गुरुजी गाता था ना, वो रिकॉर्डिंग में नहीं मिलेगा, कुछ मिलता है, लेकिन जब आमने सामने गुरुजी कीर्तन करने लगा हमारे सामने, तो फिर सब तो मुग्ध हो जाते थे। गुरुजी का कीर्तन कुछ और तो 96 में गुरुजी कुछ कीर्तन करता था हमको, लेकिन वो फ्रस्ट्रेट भी हो जाता था कि सिखा रहा है और हमको नहीं आ रहा है, हमारा तो सालों से दूसरी तरह से गा रहे हैं और उसको बदल रहा है, तो गुरुजी नहीं होता। तो 97 में कृष्णदास आया, बस सब ठीक हो गया। कृष्णदास को गुरुजी ऐसे हाथ उठाता, ये करो वो करो, बिना कहे भी। कोई भी प्रवचन के पास गुरुजी कहते थे कृष्णदास से तू कीर्तन कर, तो उसी भाव में जिसमें गुरुजी ने प्रवचन दिया था, इंग्लिश में या कोई भी भाषा में, एग्जैक्टली उसी पे कृष्णदास कीर्तन करता था, परफेक्ट तरफ से। तो कृष्णदास से बहुत कुछ सीखा हम। कृष्णदास से भी धोती बांधना सीखा, क्योंकि पहले हम तो धोती बांधते थे, दिखाऊंगा नहीं, लेकिन बेली बटन से नीचे, पूरा नीचे टांग टांग कर, पागल की तरह। फिर कृष्णदास ने आया, वो ने बोला नहीं ऐसे मत पहनना, फिर वो उसके बाय फोर्स मेरा धोती खोला, पूरा ऊपर टाई किया, इतना ऊपर। बोले ब्राह्मण लोग ऐसे पहनते हैं, वो पेट नहीं दिखाते। तो फिर कृष्णदास से ये सीखा। फिर कृष्णदास क्या सिखाने लगे कीर्तन में, जब भी हम कीर्तन में बैठे गुरुजी के सामने या गुरुजी आने वाला है, जब कोई भी कीर्तन में बैठा है, तो जो मृदंग बजाता है, झाल कुछ भी बजाता है, सब साथ में बैठे, क्योंकि हम तो पहले एक इधर एक उधर, और हमको समझ में नहीं आता था। गुरुजी तो फ्रस्ट्रेट हो जाता कि मृदंग बजाने उधर क्यों है। वो जब कृष्णदास आया, सब साथ में बैठे थे, और जैसे गुरुजी चाहता था कीर्तन, वैसे ही करता था कृष्णदास, और वो भी स्ट्रिक्ट था, हमको सब सिखा रहे थे। जब भी हम कुछ बोलते कीर्तन के समय, वो डांटता है, चुप। कीर्तन के समय कुछ बोलने का मौका नहीं देता था कृष्णदास। और कोई भी एक बार करताल से थोड़ा गलत मारता, तो वो भी मारता। अब ऐसा नहीं होता, कोई भी बजा सकता है जो भी करना चाहता है, लेकिन पहले ऐसे था। वो कृष्णदास से सीखे। फिर बन महाराज जी भी आया था, और जब श्रीपाद बन महाराज जी आए, तो वो तो मेरा पिताजी से कहा कि देखो मैं तो इसको ले जाना चाहता हूँ इंडिया। ये 97 में था। फिर पिताजी ने कहा उसको अगले साल 98 में महाराज जी फिर आया, पिताजी से पूछा कि मैं रामानंद को ले जाना चाहता हूँ इंडिया। पिताजी ने कहा अगले साल। फिर 99 में फिर आया, और महाराज जी बोला देखो ये तीसरी बार है मैं पूछ रहा हूँ इसको ले जाने के लिए, इसके बाद नहीं पूछूंगा, ऐसा कुछ बोला था। और 99 में मेरा भी 18 साल का हो गया, तो मतलब 18 साल होने पर भी आपका स्कूल जाने का ड्यूटी नहीं, फ्री है। उससे पहले लॉ है कि स्कूल नहीं छोड़ सकते। तो जब मैं 18 हुआ, तो पिताजी ने कहा ठीक है जाओ, इंडिया जाओ। तो वो 98 में पहले तो प्लानिंग हो गया था, टिकट भी बुक हो गया कि मैं तो झूलन यात्रा से पहले जाऊंगा इंडिया, सबसे पहले बार, कभी गया नहीं। और वो भी जनरेशन गैप है। ऐसा मैं दिखता हूँ इंडियन, लेकिन नहीं हूँ अंदर से। उसको हमको कहते हैं कोकोनट, बाहर से इंडियन जैसा है लेकिन अंदर पूरा गोरा। तो 1999 में जब गुरुजी हॉलैंड आए, तो फेस्टिवल था, और मैंने सोचा कि मैं तो दीक्षा लूंगा मथुरा में जाकर, वृंदावन में जाकर। लेकिन क्या हुआ था कि महाराज जी, श्री बन महाराज जी, वो तो गुरु जी के रूम के सामने खड़ा था और दीक्षा चल रहा था। उसने मेरा हाथ पकड़ा, बोला तू भी अंदर जाओ। तो मैंने तो कहा मैं तो मथुरा में लेना चाहता हूँ, वृंदावन में लेना चाहती, इधर हॉलैंड में ले लूंगा, इसमें क्या। जैसे इसने कहा दीक्षा लिया जगन्नाथपुरी में, ये अच्छा है, मथुरा में वृंदावन जाकर लूंगा, इधर हॉलैंड में लेकर क्या, इसमें क्या है। तो महाराज ने कहा कि क्या पता एयरप्लेन के सफर में मर जाओगे। कुछ भी होने वाला है, तो दीक्षा नहीं लिया। तो मैंने बाप रे ठीक है। तो महाराज जी मेरा हाथ पकड़ा, मुझे अंदर एक माला दिया और अंदर भेज दिया। और मेरे मेरे मुझे और मेरे भाई को, मेरे भाई आज आ नहीं पाया क्योंकि मैं उसको पूछा, लेकिन क्या उसके बात है ना, वो काम करता है दिन में, और जब शाम को घर वापस आता है उसका बीवी निकलता है इवनिंग स्कूल के लिए, और बच्चे हैं, और बच्चे को आज फुटबॉल ले जाना है, कल ये करना वो करना, तो उसको कभी समय नहीं मिलता, तो इसलिए वो नहीं आया। लेकिन फिर भी महाराज जी ने हम दोनों को, बन महाराज जी, मुझे और मेरे भाई को अंदर भेज दिया, दरवाजा बंद कर दिया। तो जब अंदर आया, गुरुजी दूसरी साइड में बैठा है चेयर पर, और बाकी फुल रूम विद ऑल डिवोटीज गुरुजी को देख रहे हैं। तो मैंने सोचा अब क्या करूं, माला है। तो मैं पूरा बिल्कुल सामने गया, गुरुजी ने बुलाया। तो गुरुजी को जब माला दिया मैंने, गुरुजी मेरे हाथ पकड़ा और ऐसे
नीचे पुश किया कि मैं बिल्कुल उसके सामने बैठ गया, और जो मेरे जगह पर बैठा था वो पीछे चला गया क्योंकि गुरुजी ने मुझे पुश किया। और फिर वहां दीक्षा मंत्र गुरुजी के सामने बैठकर मिला, बिल्कुल सामने बैठ। तो फिर बाद में मुझे पता चला कि महाराज जी, श्रीला बन महाराज जी का ये कृपा था, क्योंकि उसको पता शायद हो था कि जब मैं भारत में जाकर बिग बैच में इनिशिएशन लूंगा तो आमने सामने डायरेक्टली गुरुदेव के सामने बैठकर शायद मिलने वाला नहीं था ऐसे। तो फिर 99 में जब दीक्षा मंत्र, मतलब दीक्षा तो पूरा नहीं हुआ, शुरुआत हुआ, दीक्षा इनिशिएशन अभी पूरा होने में बहुत जन्म बाकी है, फिर मिला। फिर उसके बाद जब इंडिया गया, ऑल अलोन 18-year-old बॉय, कभी गया नहीं, मेरा पैकिंग तो पूरा, आई ब्रॉट थिंग्स दैट आई शुडंट हैव ब्रॉट, जो इंडिया में है, लेकिन मुझे क्या पता उधर क्या है क्या नहीं है। तो मेरा पैकिंग क्या, अपना पिलो लेकर आया, मुझे पता इंडिया में पिलो मिलेगा कि नहीं। तो फर्स्ट ट्रिप टू इंडिया, पहली बार जीवन पहली में बार बड़ा बड़ा सूटकेस लेकर मैं आया। तो एयरपोर्ट पर कश्यप प्रभु और मनीष भाई मुझे लेने के लिए आए। तो मैं उसके घर गए और उधर मैं मनीष भाई के रूम में रहता था। पहले रात तो हम के गोलगप्पे खाने के लिए लिया, तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था डायरेक्ट डायरिया का। तो फिर उसके बाद हम थोड़े थोड़े हमको समझाने लगा कि देखो इंडिया में ऐसे वैसे, क्योंकि मैं तो दूर से आया, मुझे क्या पता। तो मनीष भाई ने स्लोली मुझे समझाया कि मथुरा में ये होता है वो होता है। और जब वीकेंड आया 2 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते बाद, हमको ये सब ले गए मथुरा और उधर छोड़ दिया, बोला गुड लक, कोई प्रॉब्लम होगा तो हमको फोन लगा देना, हम तुमको वापस ले आएंगे। क्योंकि उस मनीष भाई ने कहा था कि हमारे दिल्ली वालों के लिए बहुत मुश्किल रहता है मथुरा में रहने के लिए, और तुम तो पूरा विदेश से आया रहने के लिए, यदि कोई मुश्किल होगा तो हमको कह देना। तो मैंने सोचा बाप रे मैं कहाँ पहुंच गया, क्या होने वाला है। फिर मथुरा मध में जब अंदर आया तो सबसे पहले तो लिखा उधर पोर्ट पर पीने का पानी। तो मैंने सोचा पीने का पानी होगा, तो मैंने पिया उसको, फिर डायरिया डायरेक्टली शुरू। मैं तो फर्स्ट फ्यू वीक्स तो मैं बाथरूम में रहता था उधर मथुरा मठ में, क्योंकि कुछ भी खा नहीं पाता, पी नहीं पाता था। तो धीरे धीरे मैं समझने लगा कि देखो मैं दिखता हूँ जैसे इंडियन, इसलिए ये लोग वहां का खाने मुझे दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली मुझे बाहर जाकर बोतल का पानी पीना पड़ेगा, हमको सैलड फैलड खाना पड़ेगा, ये मसाले वाला खाना नहीं चलेगा हमारे लिए। तो जब सबसे पहले बार आया मथुरा में तो हमके सोने के लिए जगह मिला था नाथ मंदिर के अंदर में, जहां मथुरा में ये बड़ा बैल है, परम गुरु जी का पिक्चर है और आचमन करने को एक बड़ा बैल है, उसी बैल के नीचे मुझे दिया था सोने के लिए। तो मैं सोया और हर सुबह मंगल आरती के पहले ये बैल बजता था, टिंग 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 टिंग। तो पहले फर्स्ट फ्यू डेज मैं तो डायरेक्टली खड़ा हो जाता था, फिर बाद में मैं तो सुनता ही नहीं, सोता रहता था। जब परिक्रमा शुरू हो जाता मुझे बाप रे क्या हो रहा है, मैं जाग जाता था। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं मंदिर के अंदर सो रहा हूँ। तो मैंने सोचा मैं गुरुजी के पास जाऊं और गुरुजी से कहूं कि देखो गुरुदेव मुझे रूम दे देना प्लीज, क्योंकि मैं मेरा ये भी समझ था कि जो भी हरि कथा हो रहा है उसको परोस, विदेशी की तरह मैं भी सोच रहा था कि अच्छा इंडियन के पास ये भी होगा कि मुझे जो प्रवचन हो रहा है मुझे डाइजेस्ट करना है, और इसके लिए मुझे अपना स्पेस होना चाहिए, नहीं तो मैं कैसे करूंगा। तो ये सब मेरे सोच में था कि आई एम इंट्रोवर्टेड, सबके सामने खुलम खुला मैं जा भी नहीं कर सकता हूँ, मुझे कहीं बैठना चाहिए डार्क पीसफुल काम। तो मैं सोच में, लेकिन गुरुजी को ये बात कैसे कहूँ। तो मैं एक दिन गुरुजी प्रवचन देने वाला था और सब लाइन में खड़े हुए थे और मैं तो अपना जहां मैं सोता था वहीं खड़ा था। और गुरुजी जब आया, ठाकुर जी को प्रणाम किया और गुरुजी मेरे पास आए और शोल्डर पे हाथ रखा और कहा कहाँ सोते हो। मेरा दिल के बात समझ गया। तो मैंने कहा गुरुजी मैं इधर ही सोता हूँ। और फिर मैं बोलने वाला था कि गुरुजी मुझे कोई रूम मिल सकता है, मैं कहीं रूम में सो सकता हूँ। लेकिन जब मैं जस्ट उसी वक्त जिसमें कहा कि मैं इधर ही सोता हूँ, गुरुजी कहा बहुत अच्छा, और दोनों हाथ से आशीर्वाद देने गला, बहुत खुश था और चला गया। और फिर मैंने सोचा ठीक है गुरुजी खुश है तो इधर ही सोऊंगा फिर क्या है। तो मथुरा मठ में उधर ही टेम्पल रूम में एक्चुअली अच्छा था, क्योंकि समर भी आया और इंडियन समर इतना हॉट था मैं टॉलरेट नहीं कर पाया। तो मैं तो गमछे पहनकर मार्बल फ्लोर पर फैन लगाकर उधर ही सोता था, मेरे लिए अच्छा था। एक्चुअली रूम में मेरी और गड़बड़ हो जाता। 96 में 99 में यही होता था कि मैं मठ में रहता था। फिर गुरुजी ने कहा और महाराज जी बन महाराज जी भी कहा कि देखो इधर मठ में ऐसा नहीं है कि जो सब भी लोग जो आते हैं भजन के लिए नहीं आते,
कुछ लोग आते हैं खाने के लिए और सिर के ऊपर छत होने के लिए। ऐसे विदेश में तो जो आते हैं वो भी दूसरे कारण हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर भजन, क्योंकि अपना घर है, खाना पाना सब कुछ ठीक है, तो जब मत आता है मतलब कुछ और चाहता है। लेकिन भारत में कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ लोग ऐसे आते हैं थोड़ा सा सफाई कर लिए, तो इसलिए हमको खाना मिल जाता है, तो उधर ही इसलिए मत में रहते। तो इसलिए हमको कहा गया कि देखो फर्स्ट फ्लोर पर रहना, नीचे फ्लोर पर गेस्ट आते हैं वो भी चले जाते हैं, और टॉप फ्लोर पे जहाँ बालकनी है कुछ लोग आते हैं जो एंजॉय करने के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं। हमेशा फर्स्ट फ्लोर पर रहना, जहाँ ठाकुर जी का रूम है और महाराज जी तीर्थ महाराज सबका रूम है। तो मैं ये करता था, लेकिन देखो मेरा इंटेंशन शायद भजन करने के लिए भी नहीं था। मैं सोचा ऊपर फ्लोर पे तो और अच्छा है, बालकनी है, मैं बाहर देख सकता हूँ, मंदिर के अंदर मैं हूँ। तो मैं से चलो ठीक, एक दिन मैं ऊपर भी चलता हूँ। ऊपर चलता था मैं, तो एक भक्त जो मत में रहता था वो उड़ीसा से आया था। तो 99 में या 98 में उड़ीसा में तो बड़ा सा स्टॉर्म हुआ था। तो वो स्टॉर्म के कारण उसका पूरा घर खत्म हो गया और वो मत में आया। और उसी ने मुझे कहा कि देखो मेरा आंटी इंग्लैंड का है और उसने हमको 250-260 पाउंड भेजा, उसने मुझे कहा। और वो बोला लेकिन देखो मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, तुम्हारे पास है, हमारे लिए तू बदल सकता है इसको। तो मैंने कहा ठीक है, क्यों, कोई बात नहीं, मेरे पास पासपोर्ट है। तो होली गेट में मैं गया उसके साथ पैसे लेकर। देखिए मैंने ये गलती किया कि मैं उस समय तो मुझे पता नहीं था, मैं पैसा माला के अंदर रख दिया और माला धोती में डाल दिया। माला तो हृदय के सामने रखना चाहिए, मैं तो नीचे रख दिया और उसके साथ पैसा भी रख दिया। तो उसके साथ चलने लगा होली गेट, मेरा माला गिर गया, माला गया, पैसा भी गया। तो मैंने सोचा ये तो बहुत गुस्सा होगा, पैसा उसका गायब हो गया। तो उसने कहा कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, रहने दो। फिर मैं तो सोचा बाप रे मेरा माला गया। फिर मैं मत वापस आया और माधव महाराज जी से कहा कि मैं गुरु जी के साथ मिलना चाहता हूँ क्योंकि मेरा माला गायब हो गया। फिर माधव महाराज जी ने कहा कि गुरुजी को तो बहुत गुस्सा आएगा, इससे बेहतर है कि तू श्री बन महाराज जी के पास जाओ, उसके पास एक एक्स्ट्रा माला है जिस पर गुरुजी ने जाप किया, वो आपको देगा। फिर मैं बन महाराज जी के पास गया। फिर बन महाराज ने कहा कि हाँ, नहीं मेरे पास कोई एक्स्ट्रा माला नहीं है, माला चाहिए तो गुरुजी से लेना है, मेरे पास क्यों आया। फिर मैं वापस गया माधव महाराज के पास। माधव महाराज नहीं नहीं नहीं, तूने ठीक से पूछा नहीं, गुरुजी बहुत गुस्से में पड़ेगा, तुमको अच्छा नहीं लगेगा, गुरुजी को अच्छा नहीं लगेगा। महाराज जी के पास वापस जाओ, वन महाराज जी से कहो कि तुमको माला चाहिए जिस पर गुरुजी ने जाप किया और माधव महाराज जी ने कहा है कि उसको पता है कि तुम्हारे पास है। फिर मैं वापस गया वन महाराज जी के पास और कहने लगा कि माधव महाराज ये कहा वो कहा कि आपके पास माला है, मुझे माला दो। फिर वन महाराज ने कहा नहीं, माला गुरुजी से लेना है, हमारे से नहीं लेना। फिर मैं माधव महाराज के पास गया, देखो महाराज जी प्लीज मैं तो पिंग पोंग इधर उधर जाते जाते जैसे सूर्पणखा, मैं मुझे तो हो गया। तो उसने कहा ठीक है, गुरुजी के पास कल, पता नहीं उसी दिन टाइम दिया कि गुरुजी के पास आना, लेकिन वो डांटेगा, याद रखना, बी प्रिपेयर्ड। मैं ठीक है, जो भी होने वाला होने। अब उस इधर ऊपर नीचे जाते जाते मैं तो थक गया और मेरा ईगरनेस भी बढ़ गया कि नहीं मैं गुरुजी से ही लूंगा। तो जब गुरुजी के रूम में आया तो वो हंसने लगा, बोला मैंने सुना माला हो गया, बंदर ने छोड़ चुरा लिया क्या। मैंने कहा नहीं बंदर नहीं, मैं तो नहीं, होली गेट में गिरा दिया उसको। तो भी गुरुजी ने कहा देखो मैं तो नया माला दे सकता हूँ, लेकिन जो माला मेरे पास है ना वो इतना सुंदर नहीं है, इतना बड़ा शाइनी शाइनी वाला नहीं है 1-1 किलो का, वो छोटा सा है और वो रफ एजेस है, वो पूरा राउंड भी नहीं है, ऐसे घुमा घुमा फिरा करे। लेगा या दूसरा माला लेना पड़ेगा कहीं और से। तो मैं तो थक गया, तो ऊपर नीचे जाते जाते तो मैंने कहा गुरुजी जो भी आप हमको दोगे, एज लॉन्ग एज तुम्हारे हाथ से मिला, आपके हाथ से है, तो मैं खुश, मैं जस्ट आपका माला चाहता हूँ बस ये। फिर गुरुजी खुश, उस माला पर जाप किया और माला दिया। आज तक भगवान की कृपा हमारे पास अभी तक ये माला है। लेकिन मैं सोच रहा ये जो माधव महाराज जी जो खेल खेला, मैं ये जवाब नहीं देता यदि वो ये नहीं करता। शायद मैं कह देता गुरुजी से हाँ मुझे नाइस राउंड वाला चाहिए, बड़ा वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, लेकिन वो तो जो डिजायर था बड़ा माला चाहिए, तो माधव महाराज और वन महाराज साथ में निकाल दिया हमारे। गुरुजी के सामने आया तो गुरुजी हमको नॉर्मल माला ही दे दिया।
मथुरा में हम देखने लगे कि गुरुजी तो हमारा कल्चर शॉक होने लगा, क्योंकि जैसे मैं कहा था कि हम दिखता हूँ जैसे इंडियन, लेकिन जब मुंह खोलता हूँ तो आप सबको पता चल जाता कि देखो ये इंडियन नहीं है। वैसे भी मत में मैं देखा कि हमको जो ट्रीटमेंट मिल रहा था भक्तों से, उसको मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाता था। एक एग्जांपल, जैसे मथुरा में जब गुरुजी प्रवचन देता है तो कभी कभी कोई, जब यदि कोई इंडियन भक्त दरवाजे पर बैठ जाता है ना मथुरा मत में, तो गुरुजी बोलता है, हे हट, उधर क्यों बैठा, अंदर बैठो, ऐसे कहता है, और वो खड़ा होकर आराम से बैठ जाता है। लेकिन यदि कोई विदेशी उधर बैठे ना, तो गुरुजी बोलेगा, प्रभु जी, यू आर ब्लॉकिंग द एंट्रेंस, कुड यू प्लीज सिट इनसाइड। देखो बोलने के तरीका कितने अलग, हट, अंदर क्यों बैठा, और प्रभु जी प्लीज कैन यू गो सिट देयर। ये फर्क है इंडियन से बात करने से और विदेशी से बात करने से। गुरु जी ने कहा विदेशी से ऐसे कहेगा तो सब चले जाएंगे। तो हमारे ये चमड़ा जो है ना, उस वो लगता है कि मैं भी इंडियन जैसा डाइजेस्ट कर पाऊंगा, लेकिन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि विदेशी जैसा हूँ, विदेश में पला बड़ा हुआ, तो विदेशी जैसा हूँ। तो जब मत में ब्रह्मचारी लोग मेरे साथ चिल्लाने लगे, तो मैं तो रोने चाहता था कि मेरे साथ ऐसे क्यों बात कर रहे, क्या हो गया, और मेरा फीलिंग्स हर्ट माय फीलिंग्स। मैं विदेशी के तरफ ना हूँ अंदर से, तो बहुत मुश्किल था। तो फिर कुछ दिन बाद जब गुरुजी रशिया चला गया था, मैं सोचा मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, गुरुजी नहीं है, तो मैं वृंदावन चलने लगा, और खाना भी खा नहीं पाता था मत में। लेकिन गुरुजी का, I won't go too much into my own drama there, लेकिन somehow or another गुरुजी के आशीर्वाद से 99 में somehow I managed to stay in मथुरा मत। और लेकिन जब वापस आया तो गुरुजी से तो कहा कि मैं, देखो गुरुदेव, चिट्ठी भेजा गुरुजी को कि मैं तो मथुरा मत में नहीं रह सकता हूँ, मत में रहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है, ये मेरा अनुभव था, रॉन्ग अनुभव, कि शायद प्रॉब्लम ये है क्योंकि भारत में है, विदेश में मत में रहूंगा तो शायद मैं कर पाऊंगा भजन। तो मैंने गुरुजी को कहा, देखो मैं मथुरा मत में नहीं रह सकता हूँ। मनीष भाई ने कहा था, कश्यप प्रभु ने कहा था कि मुश्किल होगा, लेकिन उन लोगों के फोन मैंने किया। मैं तो एमवीटी भाग जाता था पिज्जा खाने के लिए, सैलड खाने के लिए, थोड़ा सा मन ठीक करने के लिए। फिर वापस आया विदेश, और फिर उधर गुरुजी ने कहा ठीक है, जाकर बर्मिंगहैम मठ में रहो। बर्लिन में गया तो सब लोग जर्मन बोल रहे थे, मैं तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाता था, उनका भाषा ही नहीं आता था मुझे। तो फिर इंग्लैंड में रहने लगा कुछ देर के लिए, और उधर ठीक था। फिर महाराज जी, श्री वन महाराज जी आता था, और उसके साथ में प्रचार में जाता था समर हॉलीडे में और विंटर हॉलीडे में, और बाकी उधर मत में रहता था, वो ठीक था। फिर गुरुजी ने कहा कि देखो कार्तिक भी आना चाहिए, नवद्वीप परिक्रमा भी आना चाहिए, तो उसके लिए तो काम भी करना पड़ा। तो धीरे धीरे हाँ, नौकरी भी करने लगा, क्योंकि मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन मुझसे तो नहीं होता था, तो मैं आने लगा फेस्टिवल्स में। गुरुजी 96 से 2004, जैसे मैं कहा था, गुरुजी जैसे हमारे ये सेंटा क्लॉज था। हम साल भर अच्छे बिहेव करेंगे तो गुरुजी आता, हमको आशीर्वाद देता, लविंग साइड लॉन्ग ग्लैंस देता है, और आई एम हैप्पी, यू आर हैप्पी, सब ठीक। लेकिन हमको ये भी पता चला कि यदि एक साल में कुछ गड़बड़ किया, तो उस साल जब गुरुजी फेस्टिवल में आता है तो देखता ही नहीं, उसको पता है, इग्नोर करता है। तो वो सेंटा क्लॉज जैसा है, प्रेजेंट मिलेगा यदि अच्छा बिहेवियर है, और अच्छा बिहेवियर नहीं है तो गुरुजी कुछ अटेंशन नहीं देगा। वो अपना अटेंशन पूरा छोड़ेगा टिल द लास्ट डे ऑफ द फेस्टिवल। फिर लास्ट डे आकर गुरुजी कहेगा, छोटी से एक दो शब्द बोलेगा, हाउ आर यू, कुछ भी, अब पूरा एंगर जो था सब खत्म, सब ठीक हो जाएगा। और हम एक साल पूरा बिता देते केवल गुरुजी की ये कहने का कि हाउ आर यू, उसी उसी बल पर पूरा साल चला जाता था कि हाउ आर यू, गुरुजी ने हाउ आर यू कहा है मुझसे। और जब भी गुरुजी पूछता था हाउ आर यू, मैं कुछ बोल नहीं पाता था, मुझे लग रहा था हाँ ओके, थैंक यू गुरुजी। तो एक बार जर्मनी फेस्टिवल में ये हो रहा था, एक दर्शन हो रहा था, गुरुजी अराइव हुआ था, और हम गाड़ी से अभी आ रहे थे, और गुरुजी रूम के अंदर बैठे सब भक्तों को ये कह रहे थे कि जब मैं पूछता हूँ हाउ आर यू, बहुत से लोग कहते कि आई एम ओके, लेकिन यू आर नॉट ओके, इसलिए मैं तो पूछ रहा हूँ, फॉर यू टू फाइंड आउट यू आर नॉट ओके, यू आर वेरी बैड, यू आर सफरिंग, लेकिन आपको पता नहीं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ हाउ आर यू। और ये सब गुरुजी भक्तों को समझा रहा। फिर हम पहुंचे गाड़ी से, पूरा हॉलैंड से पिताजी पार्क कर रहा था, मैं तो गाड़ी से कूद कर डायरेक्टली अंदर गया कि मुझे
बाहर से तो दिखाई दे रहा है गुरुजी अंदर है, दर्शन दे रहा है। तो मैं घुस कर अंदर गया और सबसे पहले गुरुजी मुझे कहा हाउ आर यू, ये सबको समझाने से के बाद हाउ आर यू, एंड आई एम लाइक आई एम ओके गुरुदेव, वेरी गुड, कि मैं तो खुश था गुरुजी को देखना, और सब लोग हंसने लगे। तो मैंने बाप रे, मैंने क्या गलत बोल दिया। फिर बाद में सब समझाने के लिए गुरुजी ने अभी अभी समझाए कि हाउ आर यू कहने पर ये मत कहना कि आई एम ओके, और मैं वही आकर कह दिया। तो ये एक गुरुजी हमको बहुत बार एक्चुअली एम्बेरस किया सबके सामने। एक बार 2003 में स्पेन का फेस्टिवल था, अभी समय है कि बंद करूं? 5-7 मिनट बोल सकते हैं, बोलिए। अच्छा, एक लास्ट एम्बेरसिंग कहानी का कह देता हूँ। तो स्पेन में मैं गया था। ये एक्चुअली जो फेस्टिवल होते थे ना, हमारे लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि जब गुरुजी आता था यूरोप में समर में, वो इंग्लैंड आता है, जर्मनी, फ्रांस, नहीं जर्मनी तो दिसंबर में जाता था गुरुजी। फिर उसके बाद में फरवरी मार्च में हम नवद्वीप जाते, फिर समर में यूरोप आता, और फिर लास्ट ईयर में हमको तो जिसके पास मौका था वो साल में 4 बार गुरुजी को देख सकते थे जो यूरोप में रहते थे। जैसे हरिदास प्रभु दूसरे भक्त बोलीविया और ब्राजील को कभी गुरुजी को देखे ही नहीं, लेकिन यूरोप वाले को तो 4 बार कम से कम मैक्सिमम मिलता था। तो एक बार हम स्पेन गए और गुरुजी ने सुबह सुबह प्रवचन के बाद, गुरुजी एक एक्स्ट्रा स्पेशल मूड में था उस दिन। वो मॉर्निंग वॉक पर था और हम कीर्तन कर रहे थे कृष्णदास के साथ। फिर एक सन्यासी गा रहा था निताई पद कमला या कोई कीर्तन सुबह सुबह, लेकिन इवनिंग का मेलोडी में। तो भी गुरुजी ने आया और सबसे पहले उस सन्यासी को डांट मारा कि गलत मेलोडी क्यों गा रहे हो, सुबह को शाम का मेलोडी क्यों गा रहे हो। और फिर गुरुजी ने कहा कि इतने सालों बाद पुस्तक लेकर भी अभी कीर्तन कर रहा है, क्यों पुस्तक देख रहा है, तुमको जाकर डूब मरना चाहिए। ये गुरुजी ने कहा सुबह सुबह प्रवचन में। और एक्चुअली गुरुजी प्रवचन में आने वाला नहीं था, उसके आसन पर गुरुजी का पिक्चर रखा था, लेकिन गुरुजी इतना जल्दी चढ़कर आया कि वो बैठ गया, उसका पिक्चर अभी तक था उधर, और फिर उस सन्यासी को डांट मारकर फिर चला गया। और जब गुरुजी अपने रूम जाने वाला था तो हम सब तो घेर लिया। फिर गुरुजी मेरे तरफ देखा, उसका पूरा प्लानिंग हो गया था। आज शाम को मुझे देखकर कहा पूरा सामने आकर बैठना, ठीक है? तो मैं तो दिल वाले ठीक है, हाँ जी गुरुजी। मुझे क्या पता था कि अभी गुरुजी ने किसी को डांटा, शाम को मुझे भी डांटेगा। मुझे ये लॉजिक आज समझ में नहीं आया। ठीक है गुरुजी, मैं और मैंने सोचा हाँ गुरुजी, पूरा दिन मैं सोचने लगा गुरुजी मुझे कहा सामने बैठने के लिए, मुझे बुलाया सामने बैठने के लिए। तो फिर प्रसाद के बाद हम सब रेस्ट कर रहे थे स्लीपिंग हॉल। मैं तो एक्चुअली पियानो के नीचे सो रहा था, मेरा अपना प्राइवेट स्पेस जो मुझे हमेशा चाहिए, अपना बनाया था उधर हॉल में, तो सो रहा था। और फिर कीर्तन शुरू हो गया, मैंने सुना नहीं। और जैसे कीर्तन में भी होता है, जब श्रीपाद नेमी महाराज का वायलिन बजता है ना, नमा ओम विष्णु, उससे पता चल जाता है कि गुरुजी आ गया। तो महाराज जी का जो वायलिन है, मेरा अलार्म क्लॉक रहता था, परिक्रमा में भी और विदेशी के फेस्टिवल में भी ये साइन होता कि गुरुजी आ गया। तो उसका वायलिन जब बजा, मैं जागा उठकर, मैं देखा लोग तो बैठ गए, और गुरुजी ने मुझे कहा तो सामने बैठने के लिए। कैसे बैठूंगा? somehow or another मिक्स करके थोड़ा सा as much as possible सामने में बैठ गया। फिर गुरुजी ने कृष्णदास को कहा गौरांग द्वितीय पद गाने के लिए। कृष्णदास ने कीर्तन किया। फिर और मैं तो आधा सोया, मेरा मन कहीं और बैठा था ऐसे। फिर गुरुजी ने श्यामारानी दीदी को पूछा एक्चुअली क्या उस रात पहले कुछ लड़कों लोग, मैं नहीं कुछ दूसरे लड़कों, आइसक्रीम खा रहे थे और कुछ और कर रहे थे, और गुरुजी को खबर दिया गया था कि ये बच्चे ये कर रहे हैं, हरकतें कर रहे हैं। और गुरुजी ने जब डिसाइड किया कि डांट मुझे ही मिलेगा। मैं उधर था नहीं, लेकिन फिर भी शायद मैं जाने वाला था या दूसरे जन्म में, पता नहीं, डांट मुझे ही लगा। तो श्यामा रानी दी को खड़ा किया गुरुजी, और श्यामा रानी दी ने समझाने के लिए गौरांग द्वितीय पद उसका मतलब क्या है। और वीडियो में देख सकते कि गुरुजी मेरे तरफ ही देख ही रहा था, कि उसका प्लानिंग तो था सुबह से कि इसको तो पकड़ेंगे, मुझे पता नहीं था। फिर जब श्यामा रानी दी ने खत्म किया उसका पूरा एक्सप्लेनेशन, फिर गुरुजी ने पॉइंट किया, यू स्टैंड अप एंड एक्सप्लेन व्हाट शी जस्ट सेड। तो मेरे सामने तो सुंदर गोपाल प्रभु बैठा था, आगे पीछे बड़े बड़े भक्त लोग, आश्रम। तो मैं तो कुछ सोचा नहीं, मैं किसी और को पूछ रहा है गुरुजी, हमको थोड़ी पूछेगा, मुझे कभी पूछा ही नहीं बोलने के लिए, मेरे तरफ नहीं देख रहे। फिर कोई उठा नहीं,
फिर गुरुजी भी यू, फिर मैं देख रहा हूँ पीछे, अब कोई मैं पीछे देख रहा हूँ, कोई पीछे नहीं देख रहा, मैं सामने देखता हूँ तो सब मेरे तरफ देख रहे हैं। तो मैंने सोचा अरे कुछ गड़बड़ है, सब मेरे तरफ देख रहे हैं। क्या मुझे तुम्हें, मैं कहा मैं, फिर गुरु यस यू स्टैंड अप एंड से व्हाट शी जस्ट सेड। तो मैं खड़ा हो गया और मेरा पैर पूरा शेकिंग हो रहा था। वीडियो में दिखाई नहीं देगा, लेकिन अंदर अंदर मैं तो पूरा शेकिंग कर रहा था। और माधव महाराज, श्रीपाद माधव महाराज ने कहा कि प्रणाम तो करो। ठीक है, ओम अज्ञानतिमिरांधस्य से मैं कहा, और गुरुजी जैसे वो कहता, जिस आदमी नर्वस है ना, उस गुरुजी उसको एक्स्ट्रा नर्वस ऐसे कर देता, वो कह देता लाउडर प्लीज, सुनाई नहीं दे रहा है। गुरुजी ऐसे कहा तो फिर मैं लाउडर बोलने लगा। और फिर श्यामा रानी दीदी ने मेरी कृपा करके उसने अपना पुस्तक खोला, और ऊपर मैं तो खड़ा था और गुरु श्यामा रानी नीचे से मुझे पुस्तक दिखा रहा है कि ट्रांसलेशन तो पढ़कर बोल दो कम से कम। तो मैं बोलने लगा, whoever has taken shelter of the lotus feet of Mahaprabhu is अब फिर मैं सोचने लगा what is that person, is a very great person, ऐसे कुछ बोलने लगा मैं गुरुजी गुरुदेव को। फिर गुरुदेव ने बोला और बोलो, और फिर मैं कुछ बोल नहीं पाया। तो मैं सोचने लगा देखो अच्छा ये रहेगा, मैं गुरुजी से कह देता हूँ गुरुदेव मैं नहीं सुन रहा था श्यामा नदी ने क्या बोल रही थी। गुरुजी ने कहा क्यों, क्या सोच रहा था? तो मैंने सोचा अच्छा रहेगा मैं कहूंगा कि कुछ नहीं। तो मैंने कहा कुछ नहीं। फिर गुरुजी ने कहा मुझे पता है तू क्या सोच रहा है, यू आर थिंकिंग मैं इधर आकर क्या कलेक्ट करना चाहता हूँ। फिर गुरुजी ने कहा मुझे, डू यू नो हु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन हियर, ऐसा कुछ कहा। फिर मैंने सोचा अब मैं तो कुछ बोलूंगा नहीं। माधव महाराज ने कहने लगा से राधिका, राधिका, श्रीमती राधिका। तो मैंने सोचा मेरे मुख से जब मैं राधिका शब्द बोलूंगा ना, तो वो ऐसे नहीं लगेगा कि मैं स्वामिनी श्रीमती राधिका के बारे में बात कर रहा हूँ, ये तो लगेगा कि मैं किसी लड़की के बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो पोजीशन वही था, ऐसा टीनेजर खड़ा और गुरुजी पूछ रहा है हु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये तो नहीं होगा कि मैं बोलूंगा राधिका, कोई और राधिका होगा। तो मैंने सोचा मुंह बंद, कुछ बोलो नहीं। मैं तो कह दिया कि मैं नहीं सुन रहा था, सच बता दिया बस। फिर गुरुजी ने कहा देखो तुमको लग रहा है या तुम्हारे पिताजी तुमके लिए खर्च करके तुमको स्पेन भेजा, और एक्चुअली थैंक यू पिताजी, हर साल जब गुरुजी का प्रोग्राम था हमको भेजता था, कहीं भी प्रोग्राम था टिकट खरीद कर हमको भेजता था। तो पिताजी ने कहा कि तुम्हारे पिताजी को लग रहा है कि तुम इधर आकर साधु संग कर रहे हो, पैसा खर्च कर रहे हो, तुम भी सोच रहे कि साधु संग कर रहे हो, लेकिन ये साधु संग नहीं है। इधर हमारे सामने आकर बैठ के, एंड दिस इज व्हाई ही आस्क्ड मी टू सिट इन फ्रंट ऑफ इट, हमारे सामने आकर बैठकर बस बैठना ये साधु संग नहीं है। हमको आई विल हैव टू पनिश यू, गुरुजी ने कहा। फिर उसने कहा ध्यान से सुनना, दिन भर जब प्रजप करते रहोगे तो शाम को जो प्रवचन मैं कह रहा हूं तुम्हारे अंदर नहीं जाएगा। फिर गुरुजी ने कहा आपको याद है क्या क्या प्रजल्प आज आपने किया? फिर मैंने सोचने लगा हाँ याद तो है। तो फिर मैंने कहा यस गुरुदेव। तो वो उसने बोला देखा जो प्रजल्प दिन भर करते हैं वो हमारे अंदर रहेगा, फिर जो प्रवचन गुरुजी ने कहा मैं कह रहा हूँ उसके लिए जगह नहीं रहेगा, क्योंकि आप तुमने भर दिया अपना प्रजल्प से, इसलिए कोरा कागज पूरा दिल एम्प्टी लेकर आना चाहिए। उस दिन से मैंने भी सोचा मैं बोलने भी बंद कर दिया, जो फेस्टिवल में आता है दिन में कुछ बोलता नहीं, कम से कम गुरुजी का प्रवचन अंदर आ सके। तो ये गुरुजी का कृपा है। अब बहुत समय हो गया, बहुत बोलने का भी बाकी है, लेकिन मैं इधर खत्म कर देता हूँ कि गुरुजी की कृपा से हमको ये तो बहुत बहुत सारे बातें सिखाए गुरुजी, और अभी तक सिखा रहे हैं। ऐसे नहीं है कि क्योंकि वैष्णव चरित्र सर्वदा पवित्र, जो भी गुरुजी करता है सब पवित्र है। मतलब हमारे जगत में आने का और हमारे जगत छोड़कर जाने का दोनों हमारे लिए शुभ कार्य है, क्योंकि वैष्णव चरित्र सर्वदा पवित्र। हम ये नहीं समझे कि गुरुजी चला गया, क्योंकि ये तो गुरुजी के बारे में एक्चुअली इट्स एट्रीब्यूटिंग फॉल्ट। हाँ गुरुजी हमको छोड़कर चला गया, यदि वैष्णव चरित्र सर्वदा पवित्र तो हम ये कह ही नहीं सकते कि गुरुदेव हमको छोड़कर चला गया। वो है हमारे साथ हमेशा, और ये हमारा अंतिम परीक्षा है कि हम गुरुजी के आमने सामने तो नहीं लेकिन अंदर से है। जो हमारे सिर पर हाथ रखता था, हमको ग्लैंस से देखता है, वो डायरेक्टली ऐसे विजिबल नहीं है, लेकिन हमको ढूंढना पड़ता है गुरुजी कहाँ है। पहले तो टिकट खरीद कर इंडिया जाना पड़ता था, अब कहीं का टिकट भी खरीदो इससे नहीं चलेगा, हमको अंदर देखकर ढूंढना पड़ेगा कि गुरुजी तो मंत्र दिया
एक बार मेरे मम्मी जी ने कहा था गुरुजी से, गुरुदेव आई मिस यू। फिर गुरुदेव ने कहा यू मिस मी? हाँ, मंत्र नहीं मिला, मैंने गुरु मंत्र आपको नहीं दिया, दिया तो फिर कैसे मिस कर सकते हो? मैं तो उस मंत्र के अंदर ही हूँ। फिर एक दो और भक्त को मैं जानता हूँ, वो टेस्ट करने लगा। गुरुजी प्रवचन दे रहा है कार्तिक में, और वो अपना गुरु मंत्र जाप कर रहे हैं गुरुजी के सामने। दो भक्त हैं जो एग्जैक्टली सेम कहानी हमको सुनाया, और वो तो गुरु मंत्र जाप कर रहे हैं गुरुजी के सामने। फिर गुरुजी प्रवचन करते करते बंद किया प्रवचन, और उसको देखा और बोला क्या, व्हाट? और वो दोनों भक्त चौंक गए कि हाँ। और ये प्रमाण है कि देखो गुरुजी उसके मंत्र के अंदर ही है, ऐसा नहीं है कि गुरुदेव नहीं है। तो हम ट्राई करते रहते हैं गुरुजी का। मैं तो देखो, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम, ये जो हमारा प्रार्थना है ना, मैं जब ये करता हूँ तो दिल से नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे धन नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं, लेकिन मुझे सब कुछ चाहिए। फिर भी ये अंतरे बाहिरे सम व्यवहार मेरे पास नहीं है। मैं बाहर से दिखा रहा हूँ भक्त, वो अंदर से नहीं है। लेकिन गुरु जी का ये अनुभव मुझे है, जो आनंद मिल रहा है गुरु जी की सेवा में, वो कहीं और नहीं मिलता है। और मैंने ढूंढा भी, बहुत ढूंढा, लेकिन जो आनंद गुरु जी से मिल रहा है, मिलता था भी था और अभी तक मिल रहा है, वो कहीं और नहीं है। तो मैं ट्राई करता हूँ आप सभी की कृपा से, मैं ये जो गुरु जी का जो स्मृतियां भी है, इससे इसके द्वारा गुरु जी का याद आता है, गुरु जी का सेवा का भावना फिर ऊपर आता उगता है। तो सभी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं गुरु जी को कभी भूलूंगा नहीं। और गुरु जी का सेवा, जो भी सेवा है वो मुझसे करवाना चाहता है, मैं करूं वन डे। चलो, गुरुदेव की जय। वांछा जय। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अभी बहुत बहुत सुंदर प्रभु जी, अभी बहुत बहुत सुंदर। बाकी है। कोई बात नहीं, फिर सुनेंगे आपके कई नेक्स्ट टाइम फिर अगर मौका मिलेगा। सो नाइस, आप लोगों दोनों ने यूज वेरी नाइसली एक्सप्रेस्ड योर फीलिंग्स, especially Didi in the beginning, very beautifully described how she was on Radha Kund and how she was breathless to meet Gurudev. That's what we all have to be. हम्म, We have to be breathless to meet Gurudev. We have to be breathless to meet our Ishtadev. Only then we'll meet. Otherwise, if we are breathing nicely and living, enjoying the life, it is very difficult. So your first Leela with Gurudev is like being breathless in that too in Radha Kund. It's very, very elevated place, the most elevated place in the whole world. And that's a place which is your beginning point. And then you met Gurudev. I would think that because of you, your dad met Gurudev, I think. Otherwise, he wouldn't have gone to Mathura probably. Just because you were breathless, so he went to Mathura and then he met Gurudev. So yeah, you were a spark there. So you know Gurudev from very beginning when you were a small kid. Then you very beautifully said, Gurudev is mine and I am his. What a beautiful thought. And if you can have this thought, then yes, everything is done. Just by one statement, he is mine and I am his. I am his. So you express this thought. And then you very beautifully described how you got Diksha in your bedroom. So personal. Very few people get such chance. Normally we are sitting with like 30, 40 people, but you were so lucky to get a personal Diksha in your bedroom from Gurudev. Amazing. And yeah, you described very nice Leela about the hamster also. What I really liked it. That you were so merciful that you wanted to give the kripa to hamster, that he should have the mercy. And then you took it in front of Gurudev, and Gurudev was also so merciful. You thought that he will not do anything, but he mercifully put his hand over it and he played with it. If you love somebody, then you like whatever that person has, be it hamster, be it dog, or whatever it is, because that person is related to the person whom you love. So just because Gurudev loved you so much, he was ready to do anything for you. It shows here, yeah. So very beautifully you described, Didi, that he had compassion for all the jivas, regardless of whether you are human or you're animal or you're male or you're female or you're white or black or this country or that country. He was universal love for everybody. So beautiful. And then very nicely you said he planted a seed with a strong
Sambandh he gave it to you in the very beginning. And then what he expressed, everybody, most of the people expressed this, that he had a very deeply personal relation with each disciple. Everybody feels this. So you very nicely said that nothing was replicated ever. He behaved so personally, and he gave individual attention to you that you felt top of the world, that he is giving you so much attention and love. Maybe I'm the only one here. So that's how he was, and nothing was ever repeated. And I was so amazed to hear that at a young age of like 13, you're trying to help your friends become vegetarian and go take them to Gurudev. There's so much of, you're doing so much prachar at such a young age and taking people to Gurudev. And you very beautifully described the vegetarian Leela fish and how Gurudev appeared in the dream. So Gurudev can do anything. He can appear in dream, he can influence. He has got so many ways to do things. And then, yeah, Gurudev very nicely found out what's in your heart. Your sister's heart, rather. Do you want to be a child? He asked. So how he knows everything, before you go, he knows who you are, where are you coming from, where are you going. So then he told you, look after her, to your friend, yeah. And then another thing which impressed me, he said not to go to Gurukul, but go to a university. See, he's planning your life so much. He's thinking you're good, where you should go, what is best for you. Only Guru knows. We sometimes do not know what is good for us, but he very nicely. Otherwise, normal we will think that he's a guru, he should tell you to go to Gurukul. It is the obvious answer we expect, but no, Gurudev was different. He was so much in love with all his disciples that he would think the very best for them. What is the very best for them? And that's what he guided you, and you did masters. What did you do masters in philosophy? Sorry, I'm not hearing you. Very low. I don't know why. Maybe. Yeah, you can say it's very low. Yeah, now it's fine. Yeah, now it's good. I did my bachelor's in English and creative writing, and then my master's in anthropology. Oh, okay. But it was when I was studying creative writing that I had to study Mayavad philosophy, which I didn't expect. Oh, it's not that creative, I think, my philosophy. No, I was very unexpected. Okay. And you are a paint artist also, right? You work with Shamarani Didi. Yeah, for a little bit. So you still paint or you still draw? A little bit. I used to a lot more. When I was younger, I painted a lot. Now, just every now and then. Okay. So you're very talented. Sorry? You're very talented. I can see you do a lot of things, philosophy, art. Yeah, you were saying something, Didi? You're right. Gurudev's in control of everything. That's something I wanted to say. I think you're wire moved again. Yeah, the volume goes. Haribol? No, can't hear you. Even your mic is not moving. It's not coming probably. Can you hear me? Yeah, we can hear you. Yeah, now we can hear. Yes, now you're good. Okay. So you painted with Shamarani Didi in Kartik of 2005. That was very nice. And then yeah, very nicely explained how you went to university. It was so difficult, and you got the highest grades in spite of all the difficulties you faced because of Gurudev's mercy. Yeah. It's not my intelligence. It was completely Gurudev. Yeah, yes. So yeah, Gurudev can do anything. If you have faith in him, he can do anything for you. And then how you read Javdharm, and yeah, he punched in your face twice after that drama. That was most interesting. He would do to people whom he loves so much. Yeah, I think he had a special love for you. You're really blessed, I must say. And Ramananda Prabhu, you're also really very blessed. You have been with so many
devotees, and you've been traveling with one Maharaj. It's really nice. And the way you described Prabhuji 1995, it's amazing. I mean, I never heard that from anyone before. Like 1995, Maria was crying, first to describe, and then Rath Yatra in ISKCON, then Ashram Maharaj, Govind Bhakt that time. You saw Gaur Govind Maharaj, and then Kanu Priya 1996 made a forecast. Prem Yuga will start, and then Bhakti Vaibhav Puri Maharaj to speak, and Radha Govind Maharaj. So many indications you gave of Gurudev very nicely, that he's going to come in 1996 and the Prem Yuga will start. And how Shivji started drinking milk all over the world. So very good interpretation and very good thoughts to project Gurudev as you did. Very nice. So just like you compared with Shiv, like Dwarpal announced in 1995. So he came in 5th May 1996, and that was also a special day. It was a liberation day, Akshaya Tritiya. So see how divine Gurudev, everything is, all his movements and going and coming. And end of Second World War. So it was a special day that time, yeah. And then Brajnath Prabhu, also temple president, how beautifully he was keeping Gurudev's books everywhere in a hiding fashion, so that nobody knows, but he's giving it to everybody also, yeah. So but Brajnath Prabhu has been serving Gurudev even before he came to him. He's putting his books in everybody's hearts. Yes. And then how you went in ISKCON t-shirt to give garland to Gurudev. Very interesting, to show that, yeah, I'm not going to come to you. I'm ISKCON man, but you were gone in very first meeting. That's how Gurudev is. And yeah, you talked about Audio Seva team. I would like to say here that anybody who wants to take part in Audio Seva team can contact me or our Vinod Prabhu. They are still looking for people and they still have a lot of Seva. Prabhuji has done Seva in this. I have also done a little bit before. So anybody who wants to do some Seva in this, maybe translation or writing the Gurudev lecture, they are most welcome to do it. They can contact me. My number is in that ID, what I share. It's there. And then Gurudev loved the Suriname language. Yes, you feel very close to him. When even in Fiji he went, he was very happy to listen to Hindi people spoke. And when he came back, he was talking about it. Oh, there are Indian people, and I was very happy to be there. So he feels at home when somebody talks to him in Hindi, or his own language. And how after 2004 described that they started having continent festival instead of having festival in each country. Yeah. And how Gurudev was teaching small things, and like Kirtan to you first year, Krishnadas Prabhu did not come, and how very nicely interpreted that that was only to teach you Kirtan by Gurudev, which he taught. Also to various sannyasis also he learned Gaur Arti, Jai Jai Radha Krishna, Mangal Arti, all those things were not there in ISKCON routine. So Gurudev taught you all those things. Yeah, Krishnadas was like that. He would know Gurudev's heart. Gurudev had to just look at him and start what he wants. He could make out what he wants all the time, yeah. And then a very amazing thing, at 18 years of age, you set out on an adventure. Very few people do it. Yeah, so that was really cool. And you went to India, came to India, and it's very nice. I must thank your father also that he let you do that. Not many fathers would allow their sons to go like this on adventure at the age of 18. Yeah, so your father was very kind to let you go. And you also took a lot of austerity, I must say, in Mathura. I know water is very hard. You cannot drink, even we cannot drink that water. If you drink, our stomach goes bad also. So you could stay there in the temple room, that too, under the bell. So quite austere, and yeah, that means you were determined to stay. Looking back, that was actually the best time in life. Yes, and that is such a transcendental place. Now we realize Mathura Math was the most transcendental place you could ever be when Gurudev was there. Yeah.
Then you describe how your mala was lost. Yeah, Gurudev would get really angry when he knows that somebody loses their mala. I was sitting there once with him, and one lady came and said, Gurudev, I lost my mala. Then Gurudev looked at his earrings, the ladies, and said, oh, your earrings are very nice. Have you ever lost them? I don't think you ever lost your earrings. How can you lose your mala? So he was not very happy when somebody loses mala. So yeah, that you described very nicely. And then you went to Berlin, England. Yeah, you have had good experience of a lot of places, and you've been with a lot of people. And then you described Gurudev coming as Santa Claus. If you have good behavior, then he'll be looking at you and be nice to you. But if you are not very good that year, then he will not look at you. He would do that with most of the people, I think. He would knowingly ignore you, and then at last, as you said, then he will talk to you so that you don't feel very bad. But all the time you'll keep feeling bad. Oh, he didn't look at me. He didn't give me any glances. Yeah, he would do that with a lot. He would play with you like this. Sometimes he'll meet you, sometimes he'll get away from you. Yeah. So, yeah, how are you? I'm okay. Yeah, normally we say that, but actually we are not okay. If we come to know this, that we are not okay, then we can do something about it. But most of the people in this world, we do not know that we are not okay. They think we are okay, we are doing well. So that's why I say Sansara Dawanal. It's jungle fire behind us, but we don't even know that we should do something about that fire, but we are just sleeping. So yeah, that's what Gurudev said, that we are sleeping in deep sleep. And yeah, you described about Leela, about the violin. That was your alarm to go to the Gurudev's meeting, and somehow you could find a place in front, and you got good, good from Gurudev. You got a nice chastisement. Gurudev will chastise only those people who are close to him, very close to him. Otherwise, he would give very lot of respect, like to Goras, as you said, please and all. But if you are Indian and very close to him, then he'll start chastising straight away. Yeah, and lastly, you describe how Gurudev said that he is in the mantra. And you gave a very nice example to support that statement of Gurudev, that in Pravachan, somebody was chanting his mantra and Gurudev was attracted towards that guy. And he said, oh, why are you calling me? So yes, so when we chant his mantra, he is there physically in front of us. When we do his archan, he is there in the picture. When we do his archan, he is there in the vigraha. He is always there with us. Yeah, but we miss him also at the same time. Because when he was there physically, when we could interact, that was different. Even though he's there now and we could internally talk to him and get answers, but when he was there, the energy was totally different for everyone. So we missed those days also. Prabhuji, thank you so much for being here on the program. And we'll have your father also very soon on 30th. And yesterday on Sunday, I was watching London program, and I was really lucky to find he shared a lot of pictures of the speaker in Italian. They were speaking Italian. And one of the photographs he shared, I could see my own picture there with Gurudev. And luck would have it, your dad is also there in that picture. You want to see this? I don't know if you can see it or not. Where is the camera? Can you see your father? Yes. And you can see me there on the black jacket with other side of the Gurudev. Very young, Ajay Prabhu. Yeah, this is Italy Festival 2003. So I was lucky to get. I don't have many pictures with Gurudev. This is the second one I have. So I got it from that program. So it's good to see programs. Sometimes you can get your own pictures from there. So thank you, Didi, so much, and thank you all of you for staying so late with us. And sorry. No, it's okay. The people who have not watched, they can watch tomorrow on Facebook. So tomorrow we are going to have another distinguished guest, Pujapad Bhaktivedanta Bhagwat Maharaj. He'll be there with us tomorrow. So all of you, please join in time. 8 o'clock we'll start. And thank you so much for being there. All Guru Maharaj ki jai, Anand Koti Vaishnav Vrand ki jai, Gaur Bhakt Vrand ki jai, Ramanand Prabhu ki jai, Sudevi Didi ki jai, Sabhi Shrotaon ki jai, Vijay Krishna Prabhu ki jai,
हमारे राधानाथ प्रभु की जय, शशांक प्रभु की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि। कृष्ण प्रभु की जय। जय। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, धन्यवाद।